Hi, good morning. A warm welcome to all of you in my tutorial class. Myself, Dr. Thakur Arunima Singh, Assistant Professor in JD National B.Ed College, Ranchi. Today, I will teach you about the pedagogy subject, that is English, and our topic is the process of evaluation. Before we start the class, I would like to remind you about the previous class, and that is meaning and introduction of evaluation. So guys, I think now you are able to know about evaluation. What is evaluation? In our previous class, I have already taught you that using measurement and useful information, we make a judgment that is known as evaluation. So, evaluation is a prominent process of assessing, testing, and measuring. And the main objectives are qualitative improvement, valuable judgment, and measurement of behavioral change. Now, today's topic is the purpose of evaluation. The followings are the common purpose of evaluation: diagnostic, second one remedial, third one is clarify, fourth one is guidance, and last one is classification. First one is diagnostic. Evaluation is a continuous and comprehensive process. It helps the teacher in finding out the problems and solving the problem of his students. What does it mean? इसमें ये कहा जा रहा है कि डायग्नोस्टिक मतलब हो गया कि किसी भी चीज़ को, किसी भी प्रॉब्लम को डायग्नोस करना, उसको पहचानना। जब आप समस्या को पहचान लेते हैं तब जाकर उसका उपचार कर सकते हैं। अगर इसको एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग समझने की कोशिश करें तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि हमारे यहाँ जो स्टूडेंट आते हैं उनमें कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो अपना होमवर्क सही ढंग से नहीं करके आते हैं। इसके लिए आज की डेट में उनको पनिश करना तो बेवकूफ़ी है, पनिशेबल ट्रीटमेंट तो आजकल होता ही नहीं है। इसलिए हम लोग डायग्नोस्टिक हो जाते हैं। डायग्नोस में हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उस स्टूडेंट का क्या हिस्ट्री है, उस स्टूडेंट के साथ किस तरह की समस्या है, और इसके लिए हम लोग स्टूडेंट को समझाने से पहले एक टीचर के लिए बेटर होगा कि वो उनके पेरेंट्स से बात करें और वस्तु स्थिति को समझने की कोशिश करें कि आखिर समस्या कहाँ है, होमवर्क क्यों नहीं होकर आता है। दैट इज डायग्नोस्टिक। रेमेडियल, सेकेंड वन इज रेमेडियल. By remedial work means the purpose solution after identifying the problems. A teacher can give a proper solution for a desirable change in learner behavior and to develop his personality. इसमें रेमेडियल में कहा जा रहा है कि पहले तो आप प्रॉब्लम को पता करें। प्रॉब्लम है स्टूडेंट में, वो होमवर्क क्यों नहीं बना कर आ रहा है। उसके बाद उपचारात्मक व्यवस्था में हम लोग जाते हैं, तो इसके अंतर्गत उसके पेरेंट्स से बात करने के बाद हमें पता चलता है कि उसके यहाँ लाइट का प्रॉब्लम है, उसके यहाँ भाई बहन ज़्यादा हैं, उसके पास पढ़ने के लिए प्रॉपर बुक्स नहीं है। इस तरह का जब हमें समस्या का पता चलता है तो when we identifying the problem we can give a proper solution, and solution के तौर पर हम स्टूडेंट को या तो बुक्स देते हैं, बुक्स अवेलेबल कराते हैं, उसके पेरेंट्स से बात करते हैं कि आप शाम में थोड़ा 1 घंटे का टाइम अपने बच्चे को पढ़ने के लिए दें सो दैट कि वो अपना होमवर्क
बना सके। थर्ड वन इज टू क्लैरिफाई द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इवैल्यूएशन। The objective of evaluation is to change in learners' behavior. By evaluation, a teacher can prove of change to learners' behavior. And the fourth one is it provides guidance. If a teacher has the proper knowledge about his learners, only then he can guide him. What does it mean? एक टीचर के पास अगर वो स्किल्ड टीचर है तो जब वो अपने लर्नर के प्रॉब्लम को समझ लेता है, आइडेंटिफाई कर लेता है और उसका सॉल्यूशन बता लेता है, उसके बाद वो उसे ऑब्जर्व करता है कि उसके बिहेवियर में कोई चेंज आ रहा है या नहीं। और इस तरह से एक टीचर पता करता है कि उसने अपने लर्नर को जो टिप्स दिए, जो सिखाए, उससे उसे किस हद तक फ़ायदा हुआ और वो अपना होमवर्क अब करके आ रहा है या नहीं। नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज हेल्पफुल इन क्लासिफिकेशन। Evaluation is a source by which a teacher know the various levels of his students and intelligence, ability and interest. In this point, evaluation is a source by which a teacher know the various level of his students. इस तरह से evaluation के तहत एक टीचर स्टूडेंट के कई लेवल पे जाकर उसको पहचानने की कोशिश करता है। उसके इंटेलिजेंस, एबिलिटी, इंटरेस्ट, इन सारे लेवल पे जाकर एक टीचर उसे पहचानने की कोशिश करता है और उसे इवैल्यूएट करने का प्रयास करता है। फिफ्थ पॉइंट इज हेल्पफुल इन इम्प्रूवमेंट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। बाय इवैल्यूएशन अ टीचर नॉट only improve the personality of a learner, but he also knows the level of his teaching and improves it. Thus, it is helpful in improvement of teaching and learning process. इसमें ऐसा नहीं है कि केवल टीचर एवेल्यूएशन के द्वारा अपने लर्नर के बिहेवियर में ही सुधार लाता है, उसको पढ़ने के लिए, शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करता है। ये एक टीचर के स्किल को डेवलप करने के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। एक टीचर इसके द्वारा जो वो कक्ष में पढ़ाता है उससे यह जानकारी मिलती है कि उसके द्वारा पढ़ाई गई पाठ्य वस्तु को स्टूडेंट ने, लर्नर्स ने किस लेवल तक एक्सेप्ट किया, किस हद तक उससे सीखा और किस हद तक उस सीखने के अनुभव से स्टूडेंट्स के व्यवहार में परिवर्तन आया है। Thus, evaluation is a long, continuous and qualitative process. ऐसा नहीं है कि इवैल्यूएशन के द्वारा, मूल्यांकन के द्वारा हम लोग या एक शिक्षक सिर्फ एक दिन में अपने इस कार्य को अंजाम देता है। नहीं, यह एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया है और एक शिक्षक, एक स्किल्ड टीचर वही है जो लगातार अपने स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई करते रहता है, उसके प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करता है, चिन्हित करता है और उसे सॉल्व आउट करने में सक्षम होता है। इस प्रकार इवैल्यूएशन इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। It is a process of assessing, testing and measuring to learners. The main purpose of evaluation are qualitative improvement, valuable judgment and measurement of behavioral change in a learner. That is the main purpose of evaluation. Thank you.